अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दिस इज माहम एंड वेलकम बैक टू माय ब्रांड न्यू व्लॉग इन लाइफ ऑफ देसी अमेरिकन गर्ल। आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने आप लोगों को जब मैं यहाँ पे आने वाली थी तब बताया था कि मामा की तरफ जाने के मेरे दो बड़े रीजंस हैं। तो एक रीज़न तो था कि इकरा आई हुई है, तो मैंने यहाँ पे अपनी थोड़ी सी वेकेशंस मैंने यहाँ पे गुजारनी थी इकरा के साथ, मामा लोगों के साथ। और दूसरा जो सबसे बड़ा रीज़न था वो ये था कि यहीं पे ही आके मेरी जो है ओथ सेरेमनी की डेट भी इधर ही आके मुझे मिली थी। मतलब इधर आने से पहले मुझे पता था कि मेरी ओथ सेरेमनी है, तो वो मेरी इधर ही से मैंने जाना था। तो आज वो दिन आ गया है जब मैं अपनी ओथ सेरेमनी के लिए जा रही हूँ। वहाँ पे क्या क्या होगा, कैसे होगा, सब कुछ मैं आपको वापस आके A to Z डिटेल में बताऊंगी, ताकि मैं भूलूं भी नहीं, आज की डेट में ही बताऊंगी। तो बस अभी अबू बकर रेडी हो रहा है और सुबह जो 9 बजे है मेरी ओथ सेरेमनी है, इस टाइम हो रहे हैं 7:55 रेडी वगैरह होके। बल्कि मुझे ना सुबह मैं जल्दी उठ के मुझे नींद भी नहीं आई। सुबह जल्दी उठने का ये फायदा होता है कि आप आराम से सुकून से रेडी भी हो जाते हैं। तो अभी अबू बकर के साथ मैं जाऊंगी और वहाँ पे उन्होंने कहा है कि आप अपने साथ गेस्ट भी ला सकती हैं। तो अबू बकर मेरे साथ जाएगा, जितनी मुमकिन कोशिश हो सकेगी अबू बकर जो है वो मेरे क्लिप्स कैप्चर करने की कोशिश करेगा। यहाँ पे हम बाल्टीमोर टनल के अंदर से गुजर रहे हैं और देखते ही देखते हम लोग सिटीज़नशिप जो इमिग्रेशन ऑफिस है, हम लोग उसके बाहर पहुँच गए, जहाँ पे मेरी होनी है ओथ सेरेमनी। बस फिर जल्दी से हम लोग कार पार्क करके अंदर भागे हैं, क्योंकि हम लोग एंड टाइम पे पहुँचे हैं। थोड़ी देर के बाद ही सब आराम से अपने अपनी सीट पे जाके बैठ गए हैं, अपने अपने जो भी अपने साथ गेस्ट लेके आए हैं उनके साथ। और अब हम वेट कर रहे हैं स्पीकर का कि कब वो आए और हम अपनी ओथ है वो लें। यहाँ पे अभी सबको बिठा दिया गया है और सब पिक्चर्स वगैरह ले रहे हैं। अभी थोड़ी देर में सबकी जो ओथ सेरेमनी है ना वो स्टार्ट होने वाली है। सब बहुत एक्साइटेड है। अबू बकर आ गया, अबू बकर इनकी पिक्चर लेके आया है। So applying for a U.S. passport and updating your records with Social Security. You want to just update it with Social Security so that they know you're now a citizen. And information about registering to vote, obtaining a certificate of citizenship for your child. Please be seated. Cameroon. El Salvador. Eritrea. Finland. India. Iran. Nigeria. Pakistan. Peru. Philippines. Raise your right hand, please. I hereby declare on oath that I absolutely and entirely renounce and abjure all allegiance and fidelity to any foreign prince, potentate, state or sovereignty, of whom or which I have heretofore been a subject or citizen,
that I will support and defend the Constitution and laws of the United States of America against all enemies, foreign and domestic, that I will bear true faith and allegiance to the same, that I will bear arms on behalf of the United States when required by the law, that I will perform non-combatant services in the armed forces of the United States when required by law, that I will perform work of national importance under civilian direction when required by the law, and that I take this obligation freely without any mental reservation or purpose of evasion. So help me God. Congratulations, you're already nominated. Please be seated. Believing that America is worthy of your aspirations. Every immigrant comes from America from different circumstances and for different reasons, but you all have one thing in common: courage. The courage it takes to sacrifice and make this journey. The courage to leave your homes, your lives, your loved ones, and come to a nation that is more than just a place, but rather an idea. An idea that where everyone is created equal and deserves to be treated equally. The idea that we have as a nation, and we can define America in one word: possibilities. Possibilities since its founding. Today, you've earned a new title. Justice for all. Please be seated. So to appear, because once you leave here, it's yours and you have to pick. ओथ लेने के बाद सब अपनी अपनी पिक्चर्स जो हैं वो बनवा रहे हैं और यहाँ पे अबूबकर इनकी पिक्चर बना रहा था। ये एक सिख भाई थे, हमें मिल गए, और साथ इनके एक और लड़का था जो मेरे ख्याल से नाइजीरिया का था। तो बस फिर अबूबकर इनकी पिक्चर्स ले रहा था क्योंकि इनके साथ कोई और लेने वाला नहीं था, और इन्होंने वहाँ बैठ के हमारे साथ बहुत ज़्यादा बातें भी की। यहाँ पे सब अभी खड़े होकर फोटोज़ बना रहे हैं, सब अपनी फैमिलीज़ के साथ, सब खुश है। यहाँ पे खड़े होकर भी मैंने बना लिया, इधर तो हम बनाते हैं अपनी मेहमानी को वेट कर रहे हैं। फ्लैग, ये है सर्टिफिकेट। Congratulations on becoming a US citizen. और यहाँ पे मैं जिन्होंने हमारी ओथ ली थी एडमिनिस्ट्रेटिव, इनके साथ भी मैंने एक पिक्चर बनवा ली। अब हम घर वापस जा रहे हैं। अंदर गई थी मैं नॉन सिटीज़न बन के, बाहर निकली हूँ एक सिटीज़न बन के। इन्होंने कहा है कि अपने बाकी कंट्रीज़ के साथ आपने लॉयल्टी ख़त्म करनी है और यूएस के साथ आपने अपनी लॉयल्टी बरकरार रखनी है, जो हमने एक ओथ लिया है। बाकी सारी की इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगी घर जाके। एक लग रहा है कि मैं एक नई शहरी बन के बाहर निकली हूँ। ओथ ली है, कुछ तो फेथ दिखानी पड़ेगी। बस हम अब 1 मिनट का रास्ता रह के घर पहुँच गए हैं। सबको ऐसे खुशखबरी सुनाते हैं। वैसे मैंने पिक्चर्स वगैरह रास्ते में शेयर कर दी मामा लोगों के साथ और अपने इन-लॉज में भी। अपने मैं फ्रेश होकर आप लोगों को सारी डिटेल बताती हूँ, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। पानी चलो मामा ये तैयार हो देती हैं, ठीक है। तो जी मैं आ चुकी हूँ फ्रेश होके। आज के दिन का जो मेरा एक इम्पोर्टेंट पार्ट था वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए आई हूँ। यूएस सिटीज़न फाइनली अच्छा लग रहा है, और वाकई दिल से कहूँ तो एक चीज़ होती है ना, एक दिल से अच्छी लगने वाली, और ये चीज़ मैं ही फील कर सकती हूँ क्योंकि मेरे साथ हुई है। आप एक कंट्री में रह रहे हैं,
आपके पास ग्रीन कार्ड है लेकिन आप उस कंट्री के सिटीज़न नहीं है, तो एक होता है कि सिटीज़न तो होना चाहिए ना जिस कंट्री में आप रह रहे हैं और आपने रहना है, इसीलिए अच्छा तो लगेगा ही। और ऐना यहाँ पे आ गई है, ऐना क्योंकि अभी हम लोग पहुँचे हैं, बच्चे नाश्ता वगैरह कर रहे थे तो ऐना मेरे साथ ही आ गई। इसने देखा मम्मा आई है तो मम्मा के पीछे पीछे ऐना अपना नाश्ता करती है। और अब मैं आप लोगों के साथ यूएस सिटीजनशिप का जो एक प्रोसेस है ना वो मैं शेयर करती हूँ, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पता कि ये स्टेप्स कहाँ से शुरू होते हैं। अभी नए देखने वाले भी आएंगे तो मैं उन लोगों को भी ना ऐसे ब्रीफ करके बता दूंगी, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सारे स्टेप्स के जो व्लॉग्स है ना कैसे कैसे मैंने स्टार्ट किया तो वो भी मैं मेंशन कर दूंगी। तो इस वीडियो के साथ साथ आप मेरे वो व्लॉग्स भी देख सकते हैं, उसमें मैंने थोड़ा डिटेल में बताया है कि कैसे कैसे मेरे साथ हर चीज़ जो भी हो रही थी ना वो मैं उस व्लॉग में कैप्चर करती जा रही थी। खाना नहीं? अच्छा चलो पानी पी लो। मम्मा खा ले, मम्मा खा ले, आपने खाना है? चलो अगर मैंने खा लिया फिर ऐना ने कहना है कि क्यों खा लिया, इसलिए मैं थोड़ा सा ना वेट करती हूँ, ऐना खा ले फिर मैं कंटिन्यू करती हूँ। इस फ्लैग को हम रख लेते हैं साइड पे। इस पूरे सिटीजनशिप के ना 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले स्टेप में आपने क्या करना होता है कि एप्लीकेशन फॉर नेचुरलाइजेशन वो आपने फिल करनी होती है ऑनलाइन। स्टेप 2 में क्या होता है कि आपका डॉक्यूमेंटेशन का जो भी सारा प्रोसीजर होता है उसमें आपके सिग्नेचर्स लगने होते हैं, आपके फिंगरप्रिंट्स होते हैं और आपकी पिक्चर खींची जाती है। जो सेकंड स्टेप होता है डॉक्यूमेंटेशन का वो आपने एक ऑफिस में जाके सारा करवाना पड़ता है। उसकी अपॉइंटमेंट जो होती है ना वो आपको घर में मेल आती है कि आपकी अब डॉक्यूमेंटेशन के लिए अपॉइंटमेंट है। उसके बाद क्या होता है, स्टेप 3 में आपका इंटरव्यू होता है जिसमें आपसे वो क्वेश्चंस पूछते हैं। क्या क्या क्वेश्चंस पूछते हैं, कैसे पूछते हैं, उस वीडियो का लिंक जो है ना वो मैंने पहले भी बताया है कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। तो स्टेप 3 में आपका होता है प्रॉपर और पूरा एक इंटरव्यू होता है। उसके बाद स्टेप 4 होता है ऑथ सेरेमनी का, जो कि आज था मेरा स्टेप 4 वाला। आज मुझे सिटीजनशिप जो है वो ऑफिशियली मिल चुकी है, ऑथ मैं लेके आ चुकी हूँ, अब मैं प्रॉपर सिटीजन हूँ, अब मेरा पासपोर्ट बनेगा। ग्रीन कार्ड उन्होंने मुझसे ले लिया हुआ है, कैसे लिया वो भी मैं आपको बताती हूँ। साथ साथ मैं आप लोगों को बता देती हूँ, फरवरी में मैंने अपनी एप्लीकेशन जो है वो ऑनलाइन सबमिट करवाई थी, मार्च में जाके मेरी डॉक्यूमेंटेशन हुई थी, अप्रैल का पूरा महीना मैंने तैयारी की थी क्योंकि उन्होंने ही मुझे टाइम दिया था। मई में जाके मेरा जो है इंटरव्यू का टेस्ट हुआ था जब मैं लास्ट टाइम मामा की तरफ आई थी। फिर जून जुलाई में जो 2 महीने लगाए ना, 1 महीने में मुझे बिल्कुल भी कोई नोटिस नहीं आया, कोई ईमेल नहीं आई, मैं डेली चेक करती थी। फिर जब दूसरा महीना स्टार्ट हुआ था, ये इंटरव्यू के बाद वाली की मैं बात कर रही हूँ, जब मैं वेट कर रही थी कि कब मुझे ओथ के लिए बुलाएंगे, उन्होंने कहा था कि 30 डेज लगते हैं, यानी कि 30 डेज लग ही जाते हैं। तो दूसरे महीने में जाके उन्होंने मुझसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे थे कि ये कुछ प्रूफ है, कुछ एविडेंस है, तो उनको कुछ चाहिए था। उनको लगा था कि उनको कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, तो उन्होंने फिर मुझे बताया कि ये डॉक्यूमेंट्स आप हमें भेजें। तो उसके लिए भी 2 ऑप्शन थे, या तो हम ऑनलाइन जमा करवा देते या फिर हमने मेल करनी थी। तो मुझे मेल करना ज़्यादा बेस्ट लगा क्योंकि मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी कि कोई गलती ना हो, क्योंकि ऑनलाइन में ये होता है कि आप स्कैन करते करते ना कुछ पेपर ऊपर नीचे हो जाता है, कुछ एग्जैक्ट फॉर्मेट मैच नहीं करता। मैंने कहा पहले ही वेट कर लिया तो हम ना मेल कर देते हैं। फिर हमने मेल कर दिए वो पेपर्स। जैसे ही जब मेल किए तो 3-4 डेज़ के बाद उनका मुझे जो है ईमेल आ गई कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमें मिल चुके हैं और अब आप ना वेट करें, हम थोड़ा सा ना इसको रिव्यू करते हैं। फिर मैंने कहा पता नहीं कितना टाइम लगेगा, तो तकरीबन 2 डेज़ के बाद ही उन्होंने मुझे जो ओथ सेरेमनी के लिए स्केड्यूल कर दिया था कि हमने आपका ना स्केड्यूल कर दिया। लेकिन उन्होंने उसमें मुझे कुछ भी नहीं बताया था कि कब होगी। उन्होंने कहा कि बस आपके मेल एड्रेस में ना हमने आपको कर दिया, उस पेपर में ही सब कुछ लिखा है। उस पेपर में क्या लिखा था, डेट, टाइम और लोकेशन जो थी वो उस पेपर में लिखी थी, वो उन्होंने पहले डिस्क्लोज नहीं की थी। जो मेल एड्रेस था उसमें ही उन्होंने मुझे बताना था। फिर हमने उसका वेट किया, जैसे ही आया तो फिर उन दिनों में फिर मेरा प्लान बन रहा था मामा की तरफ आने का और इकरा का भी प्लान था इधर आने का। इसलिए ये तो अल्लाह ताला की तरफ से हुआ है कि मेरा बाय चांस ही इधर आके ही मामा की तरफ मेरा जाना हो गया। सबसे अच्छी बात ये थी कि जो लोकेशन है वो मामा लोगों के घर से 40 मिनट्स के डिस्टेंस पे है। तो सबसे अच्छी बात मेरे लिए यही होगी कि चलो इधर आके मामा लोगों से ही मिल लिया, इकरा से भी मिल लिया, छुट्टियां भी हम अपनी इंजॉय कर रहे हैं और साथ मेरा जो इतना बड़ा एक काम था वो भी मेरा ओथ सेरेमनी का वो भी मेरा पूरा हो गया। तो इस पूरे प्रोसीजर में एप्लीकेशन जमा करवाने से लेकर आज के दिन तक मुझे प्रॉपर जो टाइम लगा है, जो टाइम ड्यूरेशन है वो है 6 मंथ्स। 6 मंथ के महीने में मुझे मिली है मेरी सिटीजनशिप। ये दो हिबा ने मुझे ना से घड़ी वापस लाके दी है। ये है प्यारी सी हिबा, हेलो करो। हेलो। चलो अब जाओ, मैं बात कर रही हूँ। ऐना का ख्याल रखो, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ जो आज मेरे साथ साथ कैसे कैसे हुआ है। आज 9 बजे मेरी ओथ जो है वो स्टार्ट होनी थी। मैंने आप लोगों को बताया कि हम तकरीबन 5-10 मिनट पहले ही हम लोग अंदर पहुंचे हैं पूरे टाइम पे, क्योंकि रास्ते में ना बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी। सुबह का टाइम था, हम लोग हालांकि 1 घंटा पहले घर से निकले हैं, पहुँचते पहुँचते फिर भी हमें टाइम लग गया।
वहाँ जाते ही जो सिक्योरिटी चेक होता है, वहाँ पे हमने फ़ोन वगैरह एक ऐसे बास्केट थी उसके अंदर रखे और अपने सारे पर्स था वो रखा, शूज़ उतरवा के रखे। सिर्फ मेरे साथ उन्होंने ऐसा किया। जो गेस्ट आपके साथ जाता है ना, उसके साथ ऐसी चेकिंग नहीं होती। उसके साथ जो नॉर्मल चेकिंग होती है वही होती है जो बेसिकली जो ओथ लेने आए होते हैं ना, उनसे थोड़ी सी ना सख्ती के साथ चेकिंग करते हैं। मुझे बस यही हो रहा था कि अंदर पता नहीं वो फ़ोन यूज़ करने देते हैं कि नहीं करने देते हैं, लेकिन कुछ ना मैं पहले से ही घर से पढ़ के गई हुई थी कि वो यूज़ करने देते हैं। कुछ स्टेट्स में होता है कि वो नहीं करने देते। मुझे यहाँ पे ये था कि अल्लाह करे करने दें, क्योंकि मैंने आप लोगों के साथ भी तो शेयर करना था। और शुक्र है उन्होंने इतने अच्छे से फ़ोन यूज़ करने दिया ना। उन्होंने कहा कि बनाए, जितने क्लिप्स बनानी है बनाए। वो मैंने आप लोगों के साथ पहले ही शेयर कर ली है। फिर हम सिक्योरिटी चेक के बाद हम एक लाइन में लग गए। उन्होंने पूरी हमारी लाइन बना दी है। उन्होंने कहा कि लाइन में खड़े हुए हैं। फिर आहिस्ता-आहिस्ता ना वो हमें बिठा रहे थे। फिर जैसे हम लोग उस हॉल के अंदर पहुँचे हैं, वहाँ पे उन्होंने एंटर होते ही हमसे वो जो एक अपॉइंटमेंट लेटर होता है और एक फॉर्म फिल करने के लिए वो देते हैं। जब आपकी मेल आती है ना कि आपका इस दिन और इस डेट को आपकी ओथ है, तो उस टाइम पे वो जो एक फॉर्म देते हैं साथ फिल करने के लिए, वो हमने ना आज के दिन फिल करना होता है। क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो इंटरव्यू के बाद वाला टाइम होता है ना, इंटरव्यू के बाद वाला और ओथ सेरेमनी के जो बीच वाला टाइम होता है, जिससे मुझे 2 महीने लग गए। उस 2 महीने में कुछ भी हो सकता है। उस पे लिखा हुआ था कि क्या आपने इस टाइम पीरियड में आपने कहीं ट्रैवल किया है, यूएस से बाहर अगर किया है तो उसके डॉक्यूमेंट्स आपने साथ लेके आने हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं कि आपको किसी ने अरेस्ट तो नहीं कर लिया इस टाइम पीरियड में, आपने कहीं शादी तो नहीं की दोबारा, जो आपकी शादी हुई है वो आपकी ख़त्म तो नहीं हो गई, इसके अलावा किसी और ऑर्गेनाइजेशन में आप इन्वॉल्व तो नहीं हुए। इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें जो हमने टिक करनी होती हैं। येस है तो येस करना है, तो उसके साथ आपने फिर प्रूफ लेके जाना है। नो है तो उसका कोई प्रूफ लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। और साथ इसी के बैक साइड पे ना एक इंटरप्रेटर का फॉर्म था कि अगर आप ट्रांसलेटर साथ लेके जा रहे हैं तो उसकी सारी आपने डिटेल्स अंदर डालनी है। तो एंटर होते ही उन्होंने मुझसे मेरा जो ग्रीन कार्ड था, क्योंकि मैंने ग्रीन कार्ड की बेस पे यूएस सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया था, इसलिए उन्होंने मेरा ग्रीन कार्ड ले लिया और साथ उन्होंने मुझे ये फाइल दे दी और ये उन्होंने मुझे फ्लैग दे दिया। इस फाइल में क्या है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। तो इस फाइल में इन्होंने मुझे सबसे पहले क्या दिया, सबसे पहले कांग्रेचुलेशंस का लिखा हुआ था कि कांग्रेचुलेशंस ऑन बिकम अ यूएस सिटीजन। तो इसमें सारी जो राइट्स हैं और जो रूल्स हैं वो लिखे हुए हैं। और साथ उन्होंने फिर मुझे ये सर्टिफिकेट ऑफ नेचुरलाइजेशन दे दिया। इसके ऊपर मेरी फ़ोटो बनी हुई है और साथ थोड़ा सा एड्रेस लिखा हुआ है और ये उन्होंने मुझे दे दिया। और इसके अंदर साथ एक और पेपर है, ये है द व्हाइट हाउस वाशिंगटन, और इसके ऊपर सारा कांग्रेचुलेट अच्छे से किया हुआ है और साथ जो बाइडन के जो है यहाँ पे साइन किए हैं। अब साथ में मैं आपको बता देती हूँ, मैं आपको राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बता दूँ। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो एक सिटीजन की होती हैं कि आपने अपने कंट्री के साथ जो भी लॉयल्टी थी वो आपने ख़त्म करनी है और आप यूनाइटेड स्टेट्स के साथ लॉयल रहेंगे। ये आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वहाँ पे ओथ में भी हमने ऐसे ही लिया है। और राइट्स में क्या है कि अब आप अपना पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सोशल सिक्योरिटी का जो आपको दिया था वो आप अपना अपडेट कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं। नवंबर में जब वोट होंगे तो मैं वोट कर सकती हूँ। और साथ आप अपने बहन भाइयों को या अपने पेरेंट्स को जो आपके कंट्री में रह रहे हैं, आप उनको स्पॉन्सर कर सकते हैं। स्पॉन्सर करने का ये है कि जिनके बच्चे यहाँ पे पैदा हुए हैं, जैसे एना अमेरिका में पैदा हुई है, तो इसका जो बर्थ सर्टिफिकेट है ना, वही इसका प्रूफ है कि ये यहाँ की सिटीज़न है। जिनके बच्चे पाकिस्तान या किसी और कंट्री से आए हैं साथ, अगर वो 18 से नीचे हैं तो वो तो ऑटोमेटिकली जब आप सिटीज़न होंगे तो वो भी सिटीज़न हो जाएंगे। लेकिन अमेरिका आने के बाद आपने उनका N-600 फॉर्म जो है वो आपने फिल करके सबमिट करवा देना है, ताकि आपको ना आगे जाके कोई इशू ना हो। पाकिस्तान के लिए जो प्रेफरेंस कैटेगरी है सिबलिंग्स को स्पॉन्सर करने की, वो है F4। इसके अलावा सारी डिटेल्स है ना वो आपको ऑनलाइन आराम से मिल जाती हैं, कोई ऐसे टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इसके बाद हम लोग आगे चले गए, वहाँ पे पूरा हॉल बना हुआ था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग थे, 57 वो लोग ऐसे थे जिन्होंने ओथ लेनी थी। फिर उन्होंने बारी बारी करके जो जिस कंट्री से आया था उन्होंने कहा, जो स्पीकर थी फिर वो आई, उन्होंने कहा कि मैं अब कंट्रीज़ के नाम लूँगी, जो जिस कंट्री से है वो खड़ा हो जाए जब तक कि सारी कंट्रीज़ का मैं नाम ना ले लूँ। फिर ऐसा ऐसा करके उन्होंने सब कंट्रीज़ का नाम लिया। फिर पाकिस्तान का आया तो मैं तो ऐसे जोश के साथ खड़ी हुई। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि अब आप ओथ के लिए अब हम करेंगे, तो हाथ आपने राइट हैंड आपने खड़ा कर लेना है और जो आपका लेफ्ट हैंड है वो आपने ऐसे हार्ट के साथ ऐसे लगाना है। तो ओथ में जो मुझे एक चीज़ ना ऐसे दिल को जो लग गई ना, वो ये थी कि काफ़ी लोगों ने ना, मैंने ऐसे जो लोगों की वीडियोस देखी थी ना, ऐसे कह रहे थे कि बाइबल पे हाथ रखवाते हैं या इस तरह करना पड़ता है, ऐसे करना पड़ता है। तो मुझे था कि ये कैसे करेंगे। फिर मुझे एकदम से आया कि जो अमेरिका के जो अमेंडमेंट्स है ना, 27 अमेंडमेंट्स जो लॉ से भी ऊपर है, उन 27 में से एक अमेंडमेंट जो कि इतना अहम तरीन है, इतना खूबसूरत है, क्या है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आपको किसी भी रिलीजन को फॉलो करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए आपको फोर्स नहीं किया जाएगा। आपका दिल है आप प्रैक्टिस करें, आपका दिल है आप किसी रिलीजन को फॉलो करें या ना करें, वो आपके ऊपर है। अमेरिका आपको कभी भी फोर्स नहीं करेगा।
तो वहाँ पे जब हमने ओथ ली, सब ने अपने अपने कल्चर के अकॉर्डिंग अपने अपने दिमाग में जो भी गॉड्स थे तो उनको अपने दिमाग में रखा। जो क्रिश्चियंस थे, जो और सिख लोग आए हुए थे या कोई और जो किसी और कल्चर से बिलोंग करते हैं, सब ने अपने दिमाग में ऐसे ओथ लिया अपने अपने कल्चर को मद्देनजर रखते हुए। सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये वाली लगी। फिर जैसे ही ओथ ले ली, फिर उन्हें कांग्रेचुलेट किया। फिर जो बाइडेन का एक वीडियो मैसेज था जो सबको सुनाया कि अब आप ऑफिशियली यहाँ के जो यूएस सिटीजन है वो है, अब आपको यहाँ के राइट्स सारे अब आप ले सकते हैं। तो सबसे अच्छा ये लगा था कि बड़ी अच्छी फीलिंग आ रही थी, सब बहुत खुश थे। फिर सबने पिक्चर्स ली तो उन्होंने खुला कहा कि पहले मुझे यही डर लगा था कि पिक्चर्स ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। उन्होंने कहा कि इस हॉल में आपने जितनी पिक्चर्स बनानी है, जितनी वीडियोस बनानी है, रज के बनाए। कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में तो आप लोग मुझसे ज़रूर पूछें। मुझे पता है बहुत से ऐसे नए लोग हैं जिन्होंने ये वाला व्लॉग जो है पहली दफ़ा देखा है। सब लिंक्स जो है स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 के जो लिंक्स हैं मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिए हैं। आप जाके चेक कर लें, आपको बहुत अच्छी डिटेल्स मिल जाएंगी। सारे वो मोमेंट्स हैं कि जब मैं स्टेप 1 कर रही थी तो मैंने साथ ही मैंने अपना व्लॉग बना लिया था, ताकि मुझे आज के दिन कोई मसला ना हो कि अगर मैं अब याद करूँगी ना कि स्टेप 1 में मैंने क्या क्या चीज़ें की थी, कैसे की थी, तो शायद मैं कोई स्किप कर भी दूँ। लेकिन वो उस टाइम पे मैंने बना ली जैसे जैसे जो चीज़ मेरे साथ साथ हो रही थी। तो यहीं पे करूँगी मैं इस वाले व्लॉग को एंड। अगर आपको मेरा ये वाला व्लॉग पसंद आया है तो आपने करना है लाइक, एक प्यारा सा कमेंट करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। जो प्यारा सा कमेंट है ना, वो आप कोई क्वेश्चन भी कर सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगी, ज़रूर बताऊंगी। मैं मिलूंगी एक न्यू व्लॉग के साथ इन लाइफ ऑफ देसी अमेरिकन गर्ल में। अपना आप सबने रखना है बहुत सारा ख्याल। बाय बाय। यहाँ बैठी हूँ तो मुझे इतना मच्छर काट गया ना, फिर भी मैं हिली नहीं हूँ। मैंने कहा सारी डिटेल बता के ही फिर उठती हूँ।